Good morning students. Hope you all are fine at home. So beta we will continue our 10th chapter, that is Introduction to MS Access. According to your book, open page number 131. So components of Access. आपके components कौन कौन से Access के? The first one is title bar. I am showing you the title bar. Look at the screen. थोड़ा सा मैं कैमरे को क्लोज कर लेती हूँ. सी जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, पूरा रेड जो एरिया दिखाई दे रहा है, दैट इज योर टाइटल बार. इट इज एट द टॉप ऑफ द MS Access window and the title bar displays the name of the database on which you are currently working. मीन्स जो भी आप डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं और जिस डेटाबेस को आप जिस नेम से सेव करेंगे, दैट नेम विल बी अपीयर टू यू एट द top. For example, if you are preparing a database of school and the name of the database is school, then the school will be appear you on the top of the window. The second one is file tab. Here you can see this is our file tab, and file tab also has a number of options like new, open, save. These options are here for the further working. And after that, ribbon. The ribbon is the panel at the top portion of the document. It has 4 tabs like home, you can see on the screen, create, external data, database tools. These 4 are the tabs, 4 tabs, and these 4 tabs has further some commands related to your डेटाबेस, जिनका यूज़ करके आप और कमांड्स के अंदर काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. इन द सेम वे अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो होम के अंदर बहुत सारी आपको ऑप्शंस नज़र आएंगी. यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फॉर्म को टॉगल करना, ठीक है. कुछ आपने यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंपोनेंट इज दीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. क्रिएट के अंदर देखिए, आप क्रिएट के अंदर आपके टेबल्स हैं, फॉर्म हैं, रिपोर्ट्स और अदर, ये आपके पास 4 इसमें ग्रुपिंग्स हैं. एक्सटर्नल डाटा है. एक्सटर्नल, व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन द एक्सटर्नल डाटा, you will find import, export, collect data, share points, all the details are here. Fine. तो database tools के अंदर in the same way macros हैं, show, hide, analyze, these. And after that, quick access toolbar. Quick access toolbar works in the same way as you work in MS Word or in MS Excel. So whenever you will click here, you will find a number of options according to your need. You can also insert more options here and you can delete options from here. जिसके ऊपर टिक है वो आपका यहाँ अपीयर होगा और जिसके ऊपर टिक नहीं है वो अपीयर नहीं होगा. आप अपनी मर्जी से इनको इंसर्ट कर सकते हैं. देन नेविगेशन पेन. दिस विंडो where my mouse cursor is there, this is your navigation window. नेविगेशन के अंदर क्या रहता है, जो भी आप टेबल क्रिएट करते हैं, कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, कोई क्यूरी, रिपोर्ट, कुछ भी आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ नेम शो होगा. जैसे मैंने टेबल 1 क्रिएट की है तो यहाँ पर टेबल 1 आपको शो हो रही है ना, टेबल 1. सो दिस इज योर नेविगेशन विंडो. एंड आफ्टर दैट, टैब्ड डॉक्यूमेंट विंडो व्यूइंग. व्हाट डज इट मीन्स बेटा? सपोज यहाँ पर मैंने देखो टेबल 1 क्रिएट किया है, अब मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेती हूँ. क्रिएट के अंदर अब यहाँ पर टेबल 2 है. नाउ यू कैन सी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3. दिस इज योर नेविगेशन, दिस इज योर टैब्ड विंडो. अब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्विच करना है, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वही आपका ओपन हो जाएगा. ठीक है, इट मीन्स कि आप विंडोज़ के अंदर क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं. फाइन. अब है आपका MS Access offers a wide range of customizable options. How to open these customizable options? Click on the file tab. Here you will have to click on the options, last one, last
सबसे नीचे आपको ये, हाँ जी, ऑप्शंस, एंड आफ्टर दैट the first one option is general. Here general, these features allow you to personalize your work environment with the use of screen tips. Here are number of options are there beta, according to your need. If you want to change the options, means by default these options are here. If you want to change these options, so you can change from here. लाइक यहाँ से आप इसका यूज़र नेम है हरीश गिरधर है मेरे लैपटॉप का, तो इसका यूज़र नेम चेंज कर सकती हूँ मैं। डिफ़ॉल्ट डाटाबेस का फोल्डर की लोकेशन कर सकते हैं चेंज हमने। यहाँ से शॉर्टकट की स्क्रीन टिप्स, कुछ भी अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपकी ये है आपकी करंट डेटाबेस। अब ये करंट डेटाबेस के अंदर भी बहुत सारी विंडो है। आपका डिस्प्ले कहाँ से हो, आपको एप्लीकेशन का टाइटल देना है, कोई चीज़ ब्राउज करनी है, यहाँ से किसी ऑप्शन को ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन द थर्ड फीचर इज डेटा शीट। वेन एवर यू विल क्लिक ऑन द डेटा शीट यू विल ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्शंस हेयर, लाइक योर फॉर्म रिप्रेजेंट द हॉरिजेंटल और वर्टिकल, डिफॉल्ट सेल क्या रहे आपका, फ्लैट रहे या कैसा रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आप इंटरनली यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिज़ाइनर है, प्रूफिंग है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस विल बी देयर अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू कैन चेंज ऑल द थिंग्स। So now your chapter is covered up to page number 138. Fine, कुछ भी आपने चेंज करना है तो इंटरनली आप यहाँ से चेंज करेंगे। So in the coming class I will tell you more things about query and form. Only 2 or 3 topics are left. How to create query, form and records. These topics are left. Your chapter is about to over. So till the time you will have to read the chapter at the same time and try to find out the exercise of this chapter. Okay beta, thank you, have a nice day.